జిల్లాలో వచ్చి ప్రచారం ప్రసారం చేసేకి మేము వచ్చిన్నాము. నేను మాట్లాడే తెలుగు బెంగళూరు తెలుగు కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అవుతుంది, మిస్టేక్ చేసుకోవడం మీరు. తర్వాత मैं इंग्लिश में बोलिए हिंदी में बात कर हिंदी रेड्डी जी, दयाकर रेड्डी जी, बक्का श्रीनिवास जी और उंगला कल्याण जी और मेरे बेटी उस्ताद हमारे एक्स मिनिस्टर रहा कर्नाटक के, उसका बेटी एआईसीसी का ऑब्जर्वर भी है और मेरे साथ सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है। आज का मूल उद्देश्य जो है तेलंगाना, तो दिसंबर 9 तारीख को सोनिया गांधी जी ने इस तेलंगाना राज्य घोषित किया था। इसी 3 दिसंबर को तेलंगाना का चुनाव का नतीजा आ रहा है। आप सबसे अनुरोध है, इस बार तेलंगाना के लोग सोनिया जी को एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे, क्योंकि तेलंगाना राज्य बनाने में उसका भूमिका पूरा देश और दुनिया जानते हैं। 10 साल हो चुका है तेलंगाना का नाम पे केसीआर जी ने सरकार बनाया है। बनाने का वक्त काफ़ी आश्वासन दिया था। జిల్లాలో వచ్చి ప్రచారం ప్రసారం చేసేకి మేము వచ్చిన్నాము. నేను మాట్లాడే తెలుగు బెంగళూరు తెలుగు కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అవుతుంది, మిస్టేక్ చేసుకోవడం మీరు. తర్వాత मैं इंग्लिश में बोलिए हिंदी में बात कर हिंदी रेड्डी जी, दयाकर रेड्डी जी, बक्का श्रीनिवास जी और उंगला कल्याण जी और मेरे बेटी उस्ताद हमारे एक्स मिनिस्टर रहा कर्नाटक के, उसका बेटी एआईसीसी का ऑब्जर्वर भी है और मेरे साथ सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है। आज का मूल उद्देश्य जो है तेलंगाना, तो दिसंबर 9 तारीख को सोनिया गांधी जी ने इस तेलंगाना राज्य घोषित किया था। इसी 3 दिसंबर को तेलंगाना का चुनाव का नतीजा आ रहा है। आप सबसे अनुरोध है, इस बार तेलंगाना के लोग सोनिया जी को एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे, क्योंकि तेलंगाना राज्य बनाने में उसका भूमिका पूरा देश और दुनिया जानते हैं। 10 साल हो चुका है तेलंगाना का नाम पे केसीआर जी ने सरकार बनाया है। बनाने का वक्त काफ़ी आश्वासन दिया था। 6 दिन ఒక సంవత్సరానికి ప్రతి సంవత్సరాల 2 కోటి ఉద్యోగం ఇస్తున్న ప్రామిస్ చేయలేదు. స్కిల్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా, స్టాండప్ ఇండియా అదంతా ఏమైంది అడగడానికి కర్ణాటకంలో 5 గ్యారంటీ అనౌన్స్ చేసినాము. దాంట్లో బస్ ఫ్రీ నడుస్తూ ఉన్నది, ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రీ నడుస్తూ ఉన్నది, 10 కేజీ రైస్ భీమ్ ఇచ్చేకి మేమేం కార్యక్రమం అనౌన్స్ చేసేది. కేంద్ర సర్కారు నరేంద్ర మోదీ సర్కారము మాకు భీమ్ లేదు. ఎక్కడ భీమ్ ఇచ్చేకి అవుతుంది దానికి మేము భీమ్ ఇస్తాము, ఎక్కడ భీమ్ ఇచ్చేకి అవ్వలేదు వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఫండ్స్ పోతుంది, 10 కేజీస్ ఫండ్. ఇంకా వచ్చింది 2000 रुपीज़ पर फैमिली हेड, वुमेन हेड के लिए वो सरासर जा रहा है. इसलिए ಯಾವ గ్యారంటీ కార్యక్రమం కూడా స్టాప్ చేయలేదు, చేస్తూ ఉన్నది. అపప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఉండేది ఒకటే, కేవలం అపప్రచారం చేశారు. బీఆర్ దానికి నేను చెప్పింది, ట్రిపుల్ ఇంజిన్ సర్కారు ఉన్నారు, బీఆర్ఎస్ చేద్దామని చెప్పలేదు. ఒక సంవత్సరానికి ప్రతి సంవత్సరాల 2 కోటి ఉద్యోగం ఇస్తున్న ప్రామిస్ చేయలేదు. స్కిల్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా, స్టాండప్ ఇండియా అదంతా ఏమైంది అడగడానికి కర్ణాటకంలో 5 గ్యారంటీ అనౌన్స్ చేసినాము. దాంట్లో బస్ ఫ్రీ
నడుస్తూ ఉన్నది, ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రీ నడుస్తూ ఉన్నది. 10 కేజీ రైస్ భీమ్ ఇచ్చేకి మేమేం కార్యక్రమాలు అనౌన్స్ చేసేటి కేంద్ర సర్కారు నరేంద్ర మోదీ సర్కారము మాకు భీమ్ ఇవ్వలేదు. ఎక్కడ భీమ్ ఇచ్చేకి అవుతుంది దానికి మేము భీమ్ ఇస్తాము. ఎక్కడ భీమ్ ఇచ్చేకి అవ్వలేదు వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఫండ్స్ పోతుంది 10 కేజీస్ ఫండ్. इनका वचिंदी 2000 रुपीज पर फैमिली हेड वुमेन हेड के लिए वो सरासर जा रहा है. इसलिए గ్యారంటీ కార్యక్రమం కూడా స్టాప్ చేయలేదు. ఉన్నది అపప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఉండేది ఒకటే, కేవలం అపప్రచారం చేసి బీఆర్ దానికి నేను చెప్పింది ట్రిపుల్ ఇంజిన్ సర్కారు ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు 10 years చేసింది భ్రష్టాచారం ఉంటే మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఎట్లా ఉన్నది అంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎంపీకు జైల్లో వేసినారు ఈ లిక్కర్ స్కామ్. మా కేసీఆర్ కవిత రెడ్డి కవిత వాళ్ళకి స్టేషన్ కూడా పీయలేదు. ఇంకా క్లియర్గా ఉన్నది ఇది మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అవుతా ఉన్నది. దానికి స్వచ్ఛ సర్కారము, జనసామాన్యుల సర్కారము, పేదోళ్ల సర్కారము దాంట్లో కార్యక్రమం ఏమి ఉంటాము అది ఇంప్లిమెంట్ చేసి మేము తెలంగాణలో వేరు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ పునఃస్థాపన చేసేకి ట్రై చేస్తాం. వాళ్ళు చెప్పేది చూడండి, ఇంకా చిన్నోడు మా పిసిసి అధ్యక్షుడు 1980లో మేము 5 hours పవర్ పంప్ సెట్ ఫ్రీ ఇచ్చినాము. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 43 years. బంగారప్ప వచ్చిన తర్వాత 10 HP ఫ్రీ పవర్ మేము పంప్ సెట్ ఇచ్చినాము. అది నడుస్తూనే ఉంటుంది. 5 hours కాదండి, ఏమో బై మిస్టేక్ వాడు చెప్తాడు. 24 hours పవర్ ఉంటుంది. పవర్ సర్ప్లస్ స్టేట్ కర్ణాటక. మేము హైడ్రో ఉన్నది, న్యూక్లియర్ పవర్ ఉన్నది, థర్మల్ ఉన్నది, సోలార్ సర్ప్లస్ పవర్ ఉన్నది మా దగ్గర. పవర్ మేము ఇస్తూ ఉంటాము. వాళ్ళు 10 years చేసింది భ్రష్టాచారం ఉంటే మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఎట్లా ఉన్నది అంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎంపీకు జైల్లో వేసినారు ఈ లిక్కర్ స్కామ్. మా కేసీఆర్ కవిత రెడ్డి కవిత వాళ్ళకి స్టేషన్ కూడా పీయలేదు. ఇంకా క్లియర్గా ఉన్నది ఇది మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అవుతా ఉన్నది. దానికి స్వచ్ఛ సర్కారము, జనసామాన్యుల సర్కారము, పేదోళ్ల సర్కారము దాంట్లో కార్యక్రమం ఏమి ఉంటాము అది ఇంప్లిమెంట్ చేసి మేము తెలంగాణలో వేరు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ పునఃస్థాపన చేసేకి ట్రై చేస్తాం. వాళ్ళు చెప్పేది చూడండి, ఇంకా చిన్నోడు మా పిసిసి అధ్యక్షుడు 1980లో మేము 5 hours పవర్ పంప్ సెట్ ఫ్రీ ఇచ్చినాము. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 43 years. బంగారప్ప వచ్చిన తర్వాత 10 HP ఫ్రీ పవర్ మేము పంప్ సెట్ ఇచ్చినాము. అది నడుస్తూనే ఉంటుంది. 5 hours కాదండి, ఏమో బై మిస్టేక్ వాడు చెప్తాడు. 24 hours పవర్ ఉంటుంది. పవర్ సర్ప్లస్ స్టేట్ కర్ణాటక. మేము హైడ్రో ఉన్నది, న్యూక్లియర్ పవర్ ఉన్నది, థర్మల్ ఉన్నది, సోలార్ సర్ప్లస్ పవర్ ఉన్నది మా దగ్గర. పవర్ మేము ఇస్తూ ఉంటాము. तेलंगाना में फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड उसको स्थापित करने का कोशिश किया है. यादवा एंड कुरमा 100 दिन के अंदर हम लोग सेकेंड फेज में इसका शीट डिस्ट्रीब्यूशन या जो गाय डिस्ट्रीब्यूशन करने का वो काम करेंगे. जो गौड़ समाज है उसमें 5 एकड़ जो भूमि है इसको पाम ट्री ग्रो करने के लिए हम लोग जो सेंधी निकालते हैं उसको 5 एकड़ देने का बात किया है. 90% सब्सिडी इन प्रोवाइडिंग सैपलिंग. जो
చెట్లు ఉన్నది కదా, దాంతో తీసుకునేది 90% సబ్సిడీ ఇస్తాము. డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కూడా దాంట్లో ఇస్తాము. సర్కారం వస్తే లిక్కర్ షాప్ అలొకేషన్ లైసెన్స్ 15% నుంచి 55% गौ समाज किया అనేసి जलगांव डिस्ट्रिक्ट सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ का नाम पे हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट में घोषणा करेंगे. और मुनूर कापू के लिए सब्सिडाइज लोन्स भी हम लोग देंगे उसका. इसके लिए पद्मशाली के लिए मेगा पावर लूम तेलंगाना में फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड उसको स्थापित करने का कोशिश किया है. यादवा एंड कुरमा 100 दिन के अंदर हम लोग सेकेंड फेज में इसका शीप डिस्ट्रीब्यूशन या जो गाय डिस्ट्रीब्यूशन करने का वो काम करेंगे. जो गौ समाज है उसमें 5 एकड़ जो भूमि है इसको पाम ट्री ग्रो करने के लिए हम लोग जो सेंधी निकालते हैं उसको 5 एकड़ देने का बात किया है. 90% सब्सिडी इन प्रोवाइडिंग सैपलिंग. जो చెట్లు ఉన్నది కదా, దాంతో తీసుకునేది 90% సబ్సిడీ ఇస్తాము. డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కూడా దాంట్లో ఇస్తాము. సర్కారం వస్తే లిక్కర్ షాప్ అలొకేషన్ లైసెన్స్ 15% నుంచి 55% गौ समाज किया అనేసి जलगांव डिस्ट्रिक्ट सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ का नाम पे हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट में घोषणा करेंगे. और मुनूर कापू के लिए सब्सिडाइज लोन्स भी हम लोग देंगे उसका. इसके लिए पद्मशाली के लिए मेगा पावर लूम और विश्वकर्मा के लिए टूल किट और बार्बर्स, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर्स इन लोगों के लिए 90% सब्सिडी के तहत लैंड भी अर्बन एरिया में लैंड भी दिलाएंगे. और राज का सब्सिडी 10 लाख टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लाउंड्रो मैक्स फॉर राजका यूथ इन द सिटीज बिसाइड्स धोबी घाट इन द वेरियस एरियाज. जो कांग्रेस जो हम लोगों ने पहले किया था उस कार्यक्रम को तब ये लोग स्थगित कर दिया है. जो घर देने का बात हो, हम लोग अनुरोध करते हैं. जो इंदिरा जी का जो राज्य था, जो इंदिरा जी का टाइम में 73 से एक लैंडमार्क रेवोल्यूशनरी कार्यक्रम हुआ था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट के तहत. ये सब लागू करने के लिए हम लोग कांग्रेस सरकार आने में करेंगे. इसके साथ साथ 6 गारंटी स्कीम हम लोग दिया है. 6 गारंटी स्कीम के तहत कर्नाटक में भी हम गारंटी स्कीम दिए हैं. उसके तहत 5 में हम लोग 4 इम्प्लीमेंट किया है. 5वां आजकल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा जो रूरल यूथ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए. और विश्वकर्मा के लिए टूल किट और बार्बर्स, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर्स इन लोगों के लिए 90% सब्सिडी के तहत लैंड भी अर्बन एरिया में लैंड भी दिलाएंगे. और राज का सब्सिडी 10 लाख टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लाउंड्रो मैक्स फॉर राजका यूथ इन द सिटीज बिसाइड्स धोबी घाट इन द वेरियस एरियाज. जो कांग्रेस जो हम लोगों ने पहले किया था उस कार्यक्रम को तब ये लोग स्थगित कर दिया है. जो घर देने का बात हो, हम लोग अनुरोध करते हैं. जो इंदिरा जी का जो राज्य था, जो इंदिरा जी का टाइम में 73 से एक लैंडमार्क रेवोल्यूशनरी कार्यक्रम हुआ था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट के तहत. ये सब लागू करने के लिए हम लोग कांग्रेस सरकार आने में करेंगे. इसके साथ साथ 6 गारंटी स्कीम हम लोग दिया है. 6 गारंटी स्कीम के तहत कर्नाटक में भी हम गारंटी स्कीम दिए हैं. उसके तहत 5 में हम लोग 4 इम्प्लीमेंट किया है. 5वां आजकल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा जो रूरल यूथ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए. इतना ट्रेजरी के पैसे देने के बावजूद कुछ कार्यक्रम हम लोग बीसी के लिए डिक्लेयर किया है, शायद आपको दिया होगा. इस पे काफी अमल करने का हम लोग कोशिश करेंगे. जो रिजर्वेशन जो 6 महीने से पहले हम लोग रिजर्वेशन जो है वो जो हम लोग बढ़ाएंगे. जो इधर 23% है
जो लोकल बॉडीज में जिला परिषद, तालुक पंचायत, ग्राम पंचायत में जो परसेंटेज है उसको बढ़ाएंगे, उसको 43% तक लेके जाएंगे और फंड्स भी अलोकेट करेंगे। जो महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले बैकवर्ड क्लास सब प्लान में उसके लिए अलोकेट 20,000 करोड़ हम लोग करने का किया है। और जो वेलफेयर स्कीम में जो एमबीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री, अलग मिनिस्ट्री भी पूछेंगे और 50 करोड़ प्रोफेसर जयशंकर इतना ट्रेजरी के पैसे देने के बावजूद कुछ कार्यक्रम हम लोग बीसी के लिए डिक्लेयर किया है, शायद आपको दिया होगा। इस पे काफ़ी अमल करने का हम लोग कोशिश करेंगे। जो रिजर्वेशन जो 6 महीने से पहले हम लोग रिजर्वेशन जो है वो जो हम लोग बढ़ाएंगे, जो इधर 23% है, जो लोकल बॉडीज में जिला परिषद, तालुक पंचायत, ग्राम पंचायत में जो परसेंटेज है उसको बढ़ाएंगे, उसको 43% तक लेके जाएंगे और फंड्स भी अलोकेट करेंगे। जो महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले बैकवर्ड क्लास सब प्लान में उसके लिए अलोकेट 20,000 करोड़ हम लोग करने का किया है। और जो वेलफेयर स्कीम में जो एमबीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री, अलग मिनिस्ट्री भी पूछेंगे और 50 करोड़ प्रोफेसर जयशंकर के लिए कितना पूंजी हम लोग डालते हैं वो आप देखने में पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने आपको जीएसटी का आंकड़ा देखा, नीचे से 50% तबके के लोग 64% जीएसटी देते हैं, जो ऊपर का 10% जो लोग हैं वो सिर्फ 4% देते हैं। तो आजकल 4% के लोग ही चला रहे हैं पूरा देश में। जो सेक्टर में जो सेक्रेटरीज है, करीब 90 डिपार्टमेंट का सेक्रेटरीज है, उसमें 3 ही ओबीसी है। 406 नेशनलाइज्ड बैंक है, बैंक का जनरल मैनेजर देखने में 406 में सिर्फ 34 जनरल मैनेजर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, बाकी सब अपर कास्ट के हैं। इसलिए बैंक में भी अगर आपको लोन मिलना है तो लोग गरीबों के लिए नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जब इंदिरा बैंक राष्ट्रीयकरण किया तब गरीबों को बैंक ओपन किया, हम लोग नेशनलाइज किया, हम लोग राष्ट्रीयकरण किया। ये खासगीकरण कर रहा है, निजीकरण कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी, BRS सब मिलकर। तो इसलिए गरीब बैकवर्ड क्लासेस जो है वो के लिए कितना पूंजी हम लोग डालते हैं वो आप देखने में पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने आपको जीएसटी का आंकड़ा देखा, नीचे से 50% तबके के लोग 64% जीएसटी देते हैं, जो ऊपर का 10% जो लोग हैं वो सिर्फ 4% देते हैं। तो आजकल 4% के लोग ही चला रहे हैं पूरा देश में। जो सेक्टर में जो सेक्रेटरीज है, करीब 90 डिपार्टमेंट का सेक्रेटरीज है, उसमें 3 ही ओबीसी है। 406 नेशनलाइज्ड बैंक है, बैंक का जनरल मैनेजर देखने में 406 में सिर्फ 34 जनरल मैनेजर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, बाकी सब अपर कास्ट के हैं। इसलिए बैंक में भी अगर आपको लोन मिलना है तो लोग गरीबों के लिए नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जब इंदिरा बैंक राष्ट्रीयकरण किया तब गरीबों को बैंक ओपन किया, हम लोग नेशनलाइज किया, हम लोग राष्ट्रीयकरण किया। ये खासगीकरण कर रहा है, निजीकरण कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी, BRS सब मिलकर। तो इसलिए गरीब बैकवर्ड क्लासेस जो है वो जनगणति शुरू करेंगे, उसके तहत किसका कितना आबादी है उसका हक दिलाने का काम हम करेंगे, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल्स, दलित और माइनॉरिटी जो जीएसटी जो है इस देश में
64% जीएसटी आज नीचे से 50% तबके के लोग भरते हैं। इसके मतलब गरीब लोग, श्रमजीवी, लेबर क्लास, इसी को शूद्र बोलते हैं, ओबीसी बोलते हैं, इन लोगों का मेहनत से, खून पसीने से खजाना भरते हैं हैदराबाद का और दिल्ली का। भिखारी भी आज बीड़ी खरीदने से जीएसटी देना पड़ेगा, एक इडली खाने से जीएसटी देना पड़ेगा। हर एक आदमी का हक है हैदराबाद का खजाना और दिल्ली का खजाने के ऊपर। साल भर खून पसीने से आप जो खजाना भरते हैं, उस पैसे को ठीक से आपके बीच में बांट के आपका ताकत बढ़ा। जनगणति शुरू करेंगे, उसके तहत किसका कितना आबादी है उसका हक दिलाने का काम हम करेंगे। क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल्स, दलित और माइनॉरिटी, जो जीएसटी जो है इस देश में 64% जीएसटी आज नीचे से 50% तबके के लोग भरते हैं। इसके मतलब गरीब लोग, श्रमजीवी, लेबर क्लास, इसी को शूद्र बोलते हैं, ओबीसी बोलते हैं, इन लोगों का मेहनत से, खून पसीने से खजाना भरते हैं हैदराबाद का और दिल्ली का। भिखारी भी आज बीड़ी खरीदने से जीएसटी देना पड़ेगा, एक इडली खाने से जीएसटी देना पड़ेगा। हर एक आदमी का हक है हैदराबाद का खजाना और दिल्ली का खजाने के ऊपर। साल भर खून पसीने से आप जो खजाना भरते हैं, उस पैसे को ठीक से आपके बीच में बांट के आपका ताकत बढ़ा। इसलिए वो बीजेपी बनने से पहले उसका शक्ल को हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। उन्होंने आने के बाद बीसीस का रिप्रेजेंटेशन जो थे काफ़ी कम कर दिया है, और जो बैकवर्ड क्लास का रिपोर्ट भी हो या इसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एम्प्लॉयमेंट देने का या इसको एम्पावरमेंट करने का काम जो भी कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया है। एम्पावरमेंट सिर्फ केसीआर का फैमिली का हुआ और बाकी किसी का नहीं हुआ है। तो इसलिए इस बार केवल तेलंगाना नहीं है, पूरा देश में अगर कांग्रेस सरकार 24 में आ गया तो हम लोग जनगणति करने का मांग राहुल गांधी जी ने किया है। खासतौर तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आने के बाद, इसलिए वो बीजेपी बनने से पहले उसका शक्ल को हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। उन्होंने आने के बाद बीसीस का रिप्रेजेंटेशन जो थे काफ़ी कम कर दिया है, और जो बैकवर्ड क्लास का रिपोर्ट भी हो या इसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एम्प्लॉयमेंट देने का या इसको एम्पावरमेंट करने का काम जो भी कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया है। एम्पावरमेंट सिर्फ केसीआर का फैमिली का हुआ और बाकी किसी का नहीं हुआ है। तो इसलिए इस बार केवल तेलंगाना नहीं है, पूरा देश में अगर कांग्रेस सरकार 24 में आ गया तो हम लोग जनगणति करने का मांग राहुल गांधी जी ने किया है। खासतौर तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आने के बाद के लिए उन्होंने काफ़ी घोषणा किया था। आखिर देखने में 10 साल में अचीवमेंट देखने में 0% है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में तेलंगाना जो एक पुराना उसका एक ग्लोरी था, इसको हासिल करने के लिए, कांग्रेस को मदद करने के लिए हम लोग आपके तहत तेलंगाना प्रजा लोगों से अनुरोध करते हैं इस बार पूरा मदद करने के लिए। तेलंगाना में जब सरकार में आया था, केसीआर जी ने बहुत घोषणा किया था। जो बीआरएस के तहत, पहले टीआरएस था, अभी बीआरएस बन गया, आगे आने वाले दिनों में वो बीजेपी बन जाएगा।
फ्रॉम TRS टू BRS, BRS टू BJP बनने में काफ़ी देर नहीं है। इस बार हारेगा। के लिए उन्होंने काफ़ी घोषणा किया था। आखिर देखने में 10 साल में अचीवमेंट देखने में 0% है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में तेलंगाना जो एक पुराना इसका एक ग्लोरी था, इसको हासिल करने के लिए, कांग्रेस को मदद करने के लिए हम लोग आपके तहत तेलंगाना प्रजा लोगों से अनुरोध करते हैं इस बार पूरा मदद करने के लिए। तेलंगाना में जब सरकार में आया था KCR जी ने बहुत घोषणा किया था। जो BRS के तहत पहले TRS था, अभी BRS बन गया, आगे आने वाले दिनों में वो BJP बन जाएगा। फ्रॉम TRS टू BRS, BRS टू BJP बनने में काफ़ी देर नहीं है। इस बार हारेगा